بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زون پاکستان. اس وقت میں موجود ہوں اس بھائی کے ساتھ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انجینئر محمد تنویر ہیں اور انہوں نے خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان سے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، ایگریکلچر انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ ایم فل میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اور اپنا کاروبار بھی یہ کر رہے ہیں. اس لیے ہم اس بھائی کے پاس آئے تھے، ہم نے اس سے بات چیت کی. اگر آپ ویڈیو آپ پوری دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور کافی انفارمیشن ملے گی کہ انہوں نے ایگریکلچر کی ہوئی ہے. تو ایگریکلچر کی مختلف فیلڈ ہیں، کون کون سی کی ہوئی ہے، تو ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ کس بارے میں انہوں نے جو مطلب ہم پودے وغیرہ یا فصلیں وغیرہ وہ کرتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، اس بارے میں کی ہوئی ہے، یا ایگریکلچر دوسرا ہمارا جو نہری نظام ہے ایریگیشن والا اس بارے میں کی ہوئی ہے. تو اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کو پڑھائی میں کتنی ہرڈل وغیرہ یا کیسے پڑھائی مطلب اپنی کمپلیٹ یہ کر گئے. الحمدللہ ایم فل کر گیا. نیکسٹ آنے والے دنوں میں یہ ایک دن مطلب انشاءاللہ ڈاکٹر ہوں گے. تو اس بھائی سے بات چیت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ انجینئر تنویر احمد. انجینئر تنویر احمد. آپ نے ماشاءاللہ ایگریکلچر انجینئرنگ آپ نے کی ہوئی ہے؟ جی آئی ایم ریسنٹلی گریجویٹڈ فرام خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچرل انجینئرنگ. اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ایم فل کا پلان ہے؟ جی سارا ایم فل بھی انرول کرا لیا خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، کیونکہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر انجینئرنگ کا نام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ باقی یونیورسٹیز کے لحاظ سے تو مجھے یہ بیسٹ لگا ہے، تو میں نے اسی یونیورسٹی میں انرول کرایا ہے. اچھا ویسے مطلب جہاں پہ بندہ 4 سال پڑھتا ہے نا وہ تھک جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے کسی اور جگہ ایڈمیشن لینا ہے، تو آپ نہیں تھکے تھے خواجہ فرید یونیورسٹی انفارمیشن آف ٹیکنالوجی؟ یہ تھکنے والی جو بات ہے نا، تو باقی صحیح بات ہے کہ 4 سال جہاں بندہ گزارتا ہے تو تھک تو جاتا ہے، لیکن جب آگے بندہ دیکھتا ہے نا کہ 4 سال کے بعد جب گزار لیا تو 2 سال ایم فل میں بھی کرنے ہیں، تو ایم فل کے جو ہماری ریسرچ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی یونیورسٹیز کے لحاظ سے مجھے یہ بیسٹ لگی ہے، اس لیے آپ نے اس کو چوز کیا؟ جی بالکل ہی. اچھا آپ ہمیں بتائیں، آپ نے ایگریکلچر انجینئرنگ ماشاءاللہ کی ہوئی ہے اور ایم فل بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تو ایگریکلچر انجینئرنگ مختلف قسم کی ہوتی ہے، تو آپ نے کون بیسک جو ہمارے جو کنسیپٹ ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر سائنس اور ایگریکلچرل انجینئرنگ بہت ایک سیم ہی ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچرل انجینئرنگ اینڈ ایگریکلچر سائنس وہ 2 مختلف فیلڈ ہیں. تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس پری میڈیکل کرتے ہیں ایف ایس سی میں، تو وہ جاتے ہیں ایگریکلچر سائنس میں. تو جو نان میڈیکل ہمارے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں ایگریکلچرل انجینئرنگ میں. ویسے اگر ہم بات کرتے تو ہم کہتے ہیں ایگریکلچر، تو ہم ایگریکلچر کا مطلب بس مطلب ہم ساری ہی سمجھ لیتے ہیں. تو آپ مطلب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک مطلب سائنس والے بھی اور دوسرے انجینئرنگ بھی ہوتی ہے، تو ان میں ایک ایگریکلچر بھی تو مختلف قسم کی 2 ہوگی. جو سائنس والی ہے ان میں کیا کیا ایگریکلچر والے ہوتے ہیں، جو انجینئرنگ والے ان میں کیا؟ ایگریکلچرل انجینئرنگ میں جو ہمارا ایریگیشن سسٹم آ گیا، واٹر مینجمنٹ ہو گیا، سائل ٹیسٹنگ ہو گیا، یہ سارے اسی ایگریکلچرل انجینئرنگ میں آتے ہیں. جو ہمارے مختلف قسم کے پودے ہو گئے جو ہمارے زراعت سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ایگریکلچر سائنس ہے. آپ نے ایریگیشن والا آپ نے؟ جی ایریگیشن ہم نے ایریگیشن سسٹم ہم نے کیا ہوا ہے. تو ایریگیشن میں ہے کہ مختلف جیسے ہماری نہری نظام آ گئے، جیسے ہمارا ڈرپ سسٹم آ گیا، ہم سیلاب کی بات کریں تو اس بارے میں بھی جی بالکل. یہ ہمارا جو کہتے ہیں کہ یہ سیلاب آیا یہ کس وجہ سے آیا، تو میں یہ جو اپنی میری ذاتی رائے تو یہ واٹر مینجمنٹ کی وجہ سے آیا. اگر یہ ہمارے واٹر مینجمنٹ کو دیکھا جائے، اگر واٹر مینجمنٹ ہماری درست ہوتی تو سیلاب نہ آتے. آپ کے مطابق پاکستان کی واٹر مینجمنٹ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے؟ جی بالکل صحیح، کیونکہ واٹر مینجمنٹ میں ہمیں بہت زیادہ اب کام کی ضرورت ہے. اب دیکھا جائے تو نا ہم پورا سال یہ پانی کی وجہ سے مرتے ہیں. کبھی ہمارا ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ہم پانی ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا. 4-5 مہینہ پہلے چلے جائیں چولستان میں پانی نہیں تھا، بندے کیا جانور کے سب. ہاں اب یہ سچویشن ہے کہ ہم پانی کی وجہ زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو آپ کے مطابق پاکستان کے کتنے ڈیم ہونے چاہیے کہ یہ پانی مطلب جتنا بھی انڈیا چھوڑ دے تو ہم اس کو کور کر لیں؟ ایٹ لیسٹ ہم کم سے کم بنانے تو چاہیے نا. تو ہماری اتنی کیپیسٹی تو ہو کہ ہم پانی اتنا سٹور تو کہ ہم اس پانی کو اریگیشن سسٹم میں استعمال کر سکیں. اب جو ہمارا پانی آیا ہوا ہے تو یہ ہمارے کسی کام کا تو نہیں، ہم الٹا ہمیں نقصان دے کے جا رہا ہے. اب ویسے اگر میں پوچھنا چاہوں، جیسے ہی ہم مطلب سیلاب کی بات کریں یا پاکستان کے ڈیم کی بات کریں تو سب سے پہلے ہر انسان کے ذہن میں کالا باغ ڈیم کا نام آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے. تو اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ اس کی کنسٹرکشن یہ تو ایک پولیٹیکل ایشو بنا ہوا ہے. اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ بننا چاہیے. ڈیم تو صرف کالا باغ نہیں، اور بھی چھوٹے موٹے ڈیم جو ہیں ہمارے اپر لیول پہ بننے چاہیے. اچھا جو پاکستان کا نہری نظام ہے یہ کیسا ہے، کس طرح لیتے ہیں آپ؟
पाकिस्तान का नहरी निज़ाम के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है, नहरी निज़ाम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम जो है हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है। क्या बात है। तो आप सुन रहे हैं कि दुनिया में, ये नहीं सिर्फ मतलब चंद मुल्क में, जितने भी दुनिया में मुल्क हैं, सबसे बेस्ट जो निज़ाम है वो नहरी निज़ाम पाकिस्तान का। लेकिन उसके बावजूद भी जो सैलाब वगैरह आता है, पानी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पाकिस्तान सारा डूब जाता है। जी जी बिल्कुल, ये मिस मैनेजमेंट है सारा कुछ। जी नहरी निज़ाम अच्छा है लेकिन तरतीब नहीं है, मिस मैनेजमेंट मैनेजमेंट ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे ग्रो करेगा। करेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहरी निज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो पाकिस्तान में नहरें बनती हैं तो इसका कोई निज़ाम है कि इस साल में इतनी बननी है, या ये मतलब सालों में फ़िक्स होते, किसी साल कोई बना ली? नहीं नहीं, ये फिक्स नहीं होती, ये हमारे मुख्तलिफ जो स्कीमें आती हैं ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से, ये उस लिहाज से ये बनती हैं। अगर हाँ स्कीमें आती हैं, अगर कोई नहर मतलब बनती है, अगर मैं बात करूँ कि एक जो नहर नॉर्मल होती है तो उसकी मतलब जो अगर हम चौड़ाई की बात करें, लंबाई तो बहुत ज़्यादा होती है, चौड़ाई और लंबाई का कोई आइडिया है आपको कितना? ये सर इंजीनियर साहब जो होते हैं ना, वो पहले डिज़ाइन करते हैं कि हमारा जो डिस्चार्ज है बड़ी नहर से, जो छोटे हमारे खाले होते हैं तो डिस्चार्ज कितना है, उसी लिहाज से ये जो हमारे खाले हैं, जो छोटे छोटे जो हम नाला कहते हैं, तो लोकल ज़बान में नाला कहते हैं, नाला वो उसकी जो ना डिस्चार्ज के लिहाज से उसकी लेंथ और विड्थ चेक की जाती है। और मुख्तलिफ डिज़ाइन भी होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप हो गया, वी शेप हो गया। इसके अलावा जो नहरी निज़ाम के अंदर हमारे मोगा सिस्टम होता है, वो भी डिस्चार्ज के लिहाज से ही उनको डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मतलब नहर जैसे हम बनाते हैं ना, ये एक बीघा सीधा जाती है, दूसरे बीघे पे ये मतलब बाल खा जाती है इस तरफ, तो ये क्या होता है? ये मतलब जो वहाँ की अवाम होती है वो बनवाती है या पीछे से कोई निज़ाम है इसका? जो गवर्नमेंट की तरफ से एक खाला डिज़ाइन किया जाता है ऑलरेडी, उसी लिहाज से ये बनाई जाती है। ये प्राइवेट कोई नहरी ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा आए और ये बना के चला जाए। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो खाला का निज़ाम है ना, जो बना हुआ है ऑलरेडी, तो उसी लिहाज से ये बनाएंगे। से मतलब वो नक्शा देखते हैं कि कौन सा एरिया हमने सिराब करना है, तो उस लिहाज से वो वहाँ पे मतलब जिस तरफ बाल आता है तो वो मतलब वहीं पे मतलब दूसरी तरफ। जी जी बिल्कुल ऐसे, हाँ ऐसे ही, क्योंकि हमारे ना जो नहरी को खाला सिस्टम है ना, वो मैक्सिमम ऊपर रखा जाता है ताकि जो हमारा जो इरिगेशन एरिया है ना, हमारा जो लैंड है, तो मैक्सिमम हम जो सॉइल को हम इरिगेट कर सकें। अच्छा, हम मतलब जिस इलाके में अलीपुर में मौजूद है, यहाँ पे हेड पांचनंद बहुत मशहूर है, तो अगर हम हेड पांचनंद से एक बात करें, जितने मतलब नहरें निकल रही हैं, तो इन नहरों में कितना क्यूसेक पानी चला जाता है, कोई आइडिया है? इसकी ना जो 4-5 जो नहरें हमारे पास हैं, अब्बासिया हो गया और 4-5 और हैं, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इनके डिस्चार्ज अलग-अलग हैं। कोई 10,000 क्यूसेक है, कोई 7,000 क्यूसेक है, कोई 12,000 है। तो इसी लिहाज से ये डिज़ाइन मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन किए जाते हैं, उसके बाद ये बनाए जाते हैं। अच्छा, अगर मतलब जिस तरह अब सैलाब की सूरत हाल आ गई है, अगर सैलाब हो फुल मतलब है, जिस तरह अभी भी मतलब रिसेंटली हुआ है, तो ये नहरें फुल मतलब ओपन कर देते हैं या उसमें कुछ मतलब कम पानी? नहरी निज़ाम का तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हमारे ऊपर से सैलाब आता है, ऊपर से बारिश आ जाती है, तो हमें नहरी निज़ाम में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो हम मैक्सिमम क्या करते हैं, जो हमारा दरिया का गेट होते हैं ना, दरिया वाली साइड पे हम बहाव कर, हाँ उस तरफ बहाव करके हम अगले जो डैम हमारा हेड होता है, हेड वर्क्स होता है, उसको पानी दें। अच्छा, हेड पांचनंद के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, अगर आपको आइडिया हो इस बारे में आप हमें बताएं कि हेड पांचनंद से कितना क्यूसेक पानी गुजर सकता है? हमारा जो हेड पांचनंद की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 8 लाख क्यूसेक की है। 8 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी, अगर 8 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर ख़तरा हो जाएगा। हाँ जी, फुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप बता रहे थे कि नहरी निज़ाम के बारे में आपने मतलब, क्योंकि इंजीनियरिंग आपने इस निज़ाम में की है, इसलिए मैं बार बार इस तरफ सवाल पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम सबसे बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट है, अगर हम रिसेंटली जो हमारे साथ हमसाए ममालिक इंडिया, उनकी बात करें तो उनके बारे में कोई आइडिया है, उनका नहरी निज़ाम कैसा है? उनका नहरी निज़ाम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे डैम्स चेक कर रहे हैं, पाकिस्तान से कई गुना उनके डैम्स। चाहे उनका नहरी निज़ाम सही नहीं है हमारी निस्बत, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो सही, मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान की मैनेजमेंट आपको अच्छी नहीं लगी, उनकी अच्छी लगी, इस बारे में कैसे आपको लगा कि उनकी मैनेजमेंट? मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं चेक कर रहा था, तो उन्होंने ना अपने जो नहरी निज़ाम है, तो नहरी निज़ाम की वजह से सूरज की रोशनी पड़ती है नहरी पानी के ऊपर, तो एवेपोरेशन की वजह से काफ़ी पानी ज़ाया हो जा रहा है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, पानी ज़ाया ना हो, उन्होंने नहरी निज़ाम के ऊपर, नहरी सिस्टम के ऊपर सोलर सिस्टम लगा लिए। डबल फ़ायदा, पानी भी नहरों के ऊपर मतलब वो उन्होंने सोलर सिस्टम लगा दिए, पानी भी बचा रहे हैं अपना, मतलब सूरज से जो खारिज हो जाता था, और बिजली भी पैदा कर रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो रिसेंटली जो बिल आए हैं, आवाम की धाड़ है, इतने ज़्यादा बिल आए हैं, बिजली ही नहीं है। फ्यूल एडजस्टमेंट के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स बढ़ गए हैं।
तो मतलब आपके मुताबिक जो इंडिया का नहरी निज़ाम भले पाकिस्तान से थोड़ा मतलब वीक है, लेकिन जो उनकी मैनेजमेंट है वो इनसे काफ़ी दुरुस्त है। काफ़ी बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो पाकिस्तान का नहरी निज़ाम है उसके मतलब है तो सही, लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं है। जो इंडिया का नहरी निज़ाम है वो भले थोड़ा वीक है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट है वो सही है। तो आपके मुताबिक यही सुनने वालों देखने वालों हुकूमत को यही पैगाम है कि हमारा नहरी निज़ाम बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट पे तवज्जो। जी बिल्कुल, मैनेजमेंट अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो हम पानी से बहुत से फ़ायदा ले सकते हैं। सही, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। अपने देखने वालों को अपने डिग्री के मुताबिक या नहरी निज़ाम के मुताबिक कोई भी किसी हवाले का कोई पैगाम दें। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल के हैं ना, वो मैं उनको से रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की तरफ आएँ। काफ़ी स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि एग्रीकल्चर साइंस और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है। एक मतलब ये होता है जैसे हम एग्रीकल्चर का नाम लेते हैं तो हमारे मतलब एक खेतों जो फसलें वगैरह हैं इनका मतलब फ़ौरन दिमाग में हमारे पास मतलब वो जहन बन जाता है। लेकिन भाई ने आपको बताया कि ये दो किस्म की, ये एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर साइंस है। जो साइंस वाली इंजीनियरिंग वाली उनमें भी कैटेगरीज़ है। एक इन्होंने नहरी निज़ाम के बारे में मतलब एग्रीकल्चर की हुई है, दूसरी जो हमारे फसलों वाली वो और है। इसलिए अगर आपने एडमिशन लेना है तो सोच समझ के लीजिएगा। मैं आपको ये बताऊँ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए चाहिए मैकेनिकल, सिविल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक कम्बिनेशन है जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। ये तीन डिपार्टमेंट मिल के इन तीनों का कम्बिनेशन जो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने इस भाई से बातचीत की, इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। इन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हुई और इरीगेशन में की हुई। जो हमारा पाकिस्तान का नहरी निज़ाम है, इन्होंने अच्छा मतलब बताया हमें कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम, और अगर हम हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, क्योंकि रिसेंटली हमारे मुल्क में जितना पानी उन्होंने भेजा है, आखिर उनका ना हमारे निज़ाम में इतना क्या फ़र्क है कि इतना पानी उनके पास जमा होता है। आखिर उनका निज़ाम अच्छा है तो इतना जमा करते हैं, जैसे वो इधर आता है तो हमारा मुल्क सारा डूब जाता है। तो इससे इन्होंने बताया कि हमारा जो नहरी निज़ाम है वो तो बिल्कुल सही है, उनसे अच्छा है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से हम मार खा जाते हैं। इसलिए हमारे देखने वालों को और हुकूमत को भी रिक्वेस्ट है कि इस पर खासी तवज्जो दी जाए और अपने मुल्क की हिफाजत की जाए। इस तरह मज़े की और न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वधिया कमेंट्स करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।